तुझे दिया यहोवा मैं पुकारा। New building have very little arrangements. Yes. Brother Vicky sings feeling sorry due to late. No problem. Things like this happen. आइए जी, अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद के पैगंबर को जो हमारे दरमियान में मौजूद है मोबाइल के जरिया से, तो हम उसके लिए दुआ करेंगे। पास्टर ट्रॉय के लिए जी दुआ करेंगे कि खुदावंद उसे आज अपने जलाल और कलाम के लिए खुदा कसरत से इस्तेमाल करे। Let's pray for the brother Troy Seabright for the wisdom and the mysteries of the word of God, that God open the mysteries for our brother Troy Seabright. खुदा बाप यीशु के नाम में तेरे बंदा को तेरे हाथ के नीचे लाते हैं और उसके होंठों गले जुबान का जिम्मा तू लेना। वो आज जब बोले वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूस में से होकर बोले और हमारी बेहतरी के लिए, हमारी तरबियत के लिए, नसीहत के लिए हो, इस चर्च के लिए हो, इस इलाका के लिए हो, मिन्नत करते हैं खुदा। छूना ब्लेस करना खुदा के बेटे यीशु के नाम में। Amen. 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 Yes, brother. It's a very hot tonight. Here is a arrangement for your welcoming you. Brother Vicky wants to shower petals of roses on you. Yeah. You can see. Yes. Amen. Yes, you can. Hey, yes. Amen. Amen. Yes. Beautiful. Brother Vicky showering. Hello. Hallelujah. Hallelujah. It's our tradition to welcome messenger. Oh, I appreciate Messenger that. of God to welcome. I appreciate that very much. Brother कह रहे कि मैं बड़ी खुशी हुई तो मैं ताड़ा बहुत मशकूर हाँ. Yes, brother. Yes, amen. It's certainly a privilege and a honor to be able to share with you in this way. आज के दिन जो कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आज अचानक जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है। Well, I want to thank your pastor for this opportunity. मैं आपको जो एक खादमाना अपॉर्चुनिटी है, जो एक मौका है वो फराहम करना चाहता हूं। We'll pray that the Holy Spirit will have his way in his church. हम खुदावंद के मशकूर हैं उसके पाकरू के लिए जिसने हमारे इस चर्च में ये मौका फराहम किया कि हम मिल बैठकर उसके कलाम को सीख सकें। Amen. आमीन, आमीन। Praise God.
Hallelujah. Praise God. Brother, we shower petals of roses and they wants to welcome you with claps. जोरदार तालियां brother के लिए. Hallelujah. They are welcoming you with claps. Oh, praise God. Amen. This is Praise great. God. Amen. ब्रदर बड़े खुश हो रहे हैं, कह रहे कि मेरे लिए जड़ा ना बड़ा आज अजीम दिन है. Yes brother. Yes. So when preparing to speak to you today, the idea of boundaries comes to mind. हम आज के दिन सीखेंगे कि जो हमारे दिलों में, हमारे ज़हनों में ख्याल आते हैं, उसकी हद्दों के मुतालिक आज हम सीखेंगे. Now, wherever people look today, there are boundaries of some kind. बाज़ औक़ात लोग अपनी हद्दों को तलाश करते हैं कि मेरे सोचने की हद कहाँ तक है. There are boundaries that tell us how things should be or should not be. कि जो कुछ मैं सोच रहा हूं या सोच रही हूं, ये इसकी हद है या नहीं है. I'm in the Western world and have many boundaries, and you on the other side of the world have many boundaries as well. जैसे मगरबी दुनिया में, यूरोप में बहुत सारे तरीके हैं सोचने की हद्दों के, वैसे ही आपकी दुनिया में भी यानी मशरिक़ वुस्ता में भी ऐसे तरीके होंगे कि आपकी सोचने की हदें होंगी. We have certain boundaries that try to restrict how one group of people can interact with another group of people. बहुत सारे लोग अपने अंदर सोचने की हद्दों को रखते हैं, तो हमारे दरमियान भी, हमारे कलीसियाओं के दरमियान भी ऐसी हदें हैं. These boundaries affect everyone in some way or another. ये हदें बहुत सारे लोगों को मुतासिर करती हैं, या कम अज कम कुछ लोगों को तो ये बाउंड्रियां, ये हदें मुतासिर करती हैं. And sometimes they suppress people and hold them back to try to stop them from being all they can be. बहुत सारे लोगों को ये हदें आगे बढ़ने से रोक देती हैं या रोक सकती हैं. No matter where we live in the Western world or in Pakistan, these boundaries should be done away with. मगरबी दुनिया में ये बहुत कम है, लेकिन हो सकता है पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा हो. Because we do not need people held down, but we need to have people realize how much potential they have. हम बहुत सारी जो अपने अंदर पोटेंशियल, तवानाई रखते हैं, इस वक्त उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं. And tonight, that is what I am speaking about. I am speaking about Jesus, the boundary breaker. हालेलुया. आज की शाम हम सीखेंगे कि यीशु मसीह जो है वो हद्दों को तोड़ने वाला खुदा है. हालेलुया. Praise God. Amen. I want to look at 3 examples of how the Lord Jesus is not limited by boundaries. मैं 3 मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं कि यीशु मसीह लामहदूद है, उसकी कोई हदें नहीं है. But because he is all powerful, he is able to work beyond any boundary that is in the way. हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने तरीकों में, अपनी राहों पर लामहदूद है, वो हदों से पार जाकर भी खिदमत करता है. Amen. So the first example, Jesus breaks nature's boundaries. पहली जो मिसाल है, यीशु मसीह फितरत की यानी कुदरत की हदों को तोड़ता है. We see this in John chapter 2,
verses 1 to 10. हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत से। Brother, are you able to read that for them? Wait please brother. I can read chapter 2 verse 10, that. Verses 1 through 10. 1 to 10. Okay. Yes, Chapter 2. correct. Yes. The third day, there was a marriage in Cana of Galilee. Is that? Yes, that's the one, sir. The third day, there was a marriage in Cana of Galilee. Jesus' mother was there. Is that? Gospel of John or letter of John? Gospel of John. Yes, it's the story of the Yes. wedding of Yes. Cana. Yes. I can read in Urdu. Yes, that's fine. Yes. Okay. हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील देखेंगे उसके दूसरे बाब की पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। Chapter 2 verses 1 to 10। फिर तीसरे दिन कानाए गलील में एक शादी हुई। बगौर सुने, ये बाइबल क्लास है, बाइबल स्टडी है। इसको आपने अपने माइंड में रखना है और नोट भी करना है। हो सकता है कि हम इसके मुतालिक पूछें भी। फिर तीसरे दिन कानाए गलील में एक शादी हुई और यीशु की मां वहां थे और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की मां ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी मां ने खादिमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहां से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। तो मेरे मजलिस ने दुल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मै पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मै अब तक रख छोड़ी है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बड़ी बरकत का बायस हो। सब कहें आमीन। Amen, brother. Amen. I know in our culture, in the Western world, this passage is mostly used to try to support drinking alcohol. हमारे मगरबी कल्चर में, यूरोपीय कल्चर में ये जो शराब पीना है या मैं पीना है, ये बड़ी आम बात है। But that is not really the point. लेकिन ये जो पॉइंट है, ये मेरा मकसद ये पॉइंट डिस्कस करना नहीं है। There is a greater miracle that is taking place here. ये पहरा, ये हवाला हमें यीशु मसीह का एक अजीम मौजज़ा जाहिर करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का मौजज़ा जाहिर करता है। Yes, and that is Jesus proving his authority over the natural elements. यहाँ पर यीशु मसीह कुदरती अनासर को जाहिर करने का मौजज़ा करता है। I'm sure we understand the process that takes to ferment wine
मुझे नहीं पता कि ये मैं जो है इसका प्रोसेस क्या है, ये कैसे बनती है। It is a process that takes time to change the ingredients from water into wine. And that's the natural process. ये कुदरती तौर पर बहुत सारे मुरक्कब से बनती है, जैसे इसमें पानी भी डाला जाता है और दूसरे कुदरती अनासर भी इसमें डाले जाते हैं। But here we see that Jesus, having a divine authority over all, breaks the boundaries of nature. यहाँ पर यीशु मसीह कुदरत की जो फितरत की हदें हैं उनको भी तोड़ रहा है। हालेलुया। दरख्त जो है वो यहाँ पर यीशु मसीह का कहना मान रहे हैं। आप देखें कि मैं बना देना, ये कुदरत की एक बात को जो है वो चैलेंज करना है। तो यीशु मसीह ने ये कुदरत को मनवा दिया कि यीशु मसीह कुदरत को भी चेंज कर सकता है, वो फितरत को भी चेंज कर सकता है। हालेलुया। इस मौजज़ा के लिए जोरदार तालियां लगाएं, इस मिसाल के लिए। Hallelujah. Yes, we have another example of Jesus breaks cultural boundaries. हम दूसरी मिसाल देखते हैं कि यीशु मसीह सकाफती हदों को भी तोड़ता है। We read this, brother, in John chapter 4. जैसे हमने अभी देखा कि हमने फूलों की पत्तियां निछावर की, ये हमारा कल्चर है। हम कोई भी मेहमान आ जाए तो उसको खाना खाए बगैर नहीं भेजते, तो ये भी हमारा कल्चर है। Yes, brother, John chapter 4. Yes, verses 1 through 9. 1 to 9. Yes. Okay. हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील, यीशु मसीह की अंजील यूहन्ना की मार्फत लिखी गई, जो उसके 4 बाब की पहली आयत से 9वीं आयत तक। यहां पर भी एक तमसील, एक वाकया हमें मिलता है। फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, गो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सौखार कहलाता है, वो उस किता के नजदीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वहीं था। चुनाचे यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई, जिसने कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब बड़ी बरकत का बाइस हो। सब कहें आमीन। Amen. Yes, brother. Yes, the boundary was between two cultures, those being the Jewish people and the Samaritan people. यहाँ पर हमें 2 सकाफती हदें दिखाई गई हैं, जैसा कि यहूदियों की सकाफत और सामरियों की सकाफत। यहाँ पर हमें 2 तरह के कल्चर सकाफत मिलती है। Yes, brother. There was a long history between those two groups over the years, and they totally avoided each other at any cost. यहाँ पर एक लंबी तारीख मिलती है कि ये कैसे एक दूसरे से इनका कल्चर, इनका सकाफत, इनका उठना बैठना, तहजीब कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ है। बहुत सारी जंगें हुई, बहुत सारी लड़ाइयां हुई इस
दो कौमों के दरमियान। And you and I can agree on this today that these situations are just so real now as they were back then. बहुत सारी जंगें हुई इस जो है वो कल्चर को बचाने के लिए दो कौमों के दरमियान, लेकिन यीशु मसीह यहां पर इस कल्चर को जो है वो तोड़ते हैं। If you listen to any news from our Western world, you can understand that issues arising over the past number of years with regards to race of people. यीशु मसीह ने, हम मगरबी दुनिया में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने बहुत सारे मुर्दों को जिंदा किया। हालेलुया, जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। बिग हैंड फॉर जीसस क्राइस्ट। Yes. I'm sure we can Amen. agree that situations are the same on your side of the world. Amen. यहां पर मेरा ख्याल है कि इसी तरह की सिचुएशन होगी आपके मुल्क में या आपके मुमालिक में भी। आमीन। It is heartbreaking to see how humanity treats one another. ये एक जो है वो जो हमारे दिलों में धड़कने हैं, हम एक दूसरे के लिए ऐसा एहसास रखते हैं। But I'm so glad today that I can join with you and your pastors, and we can break through these cultural boundaries in Jesus' name. Praise God. ब्रदर कह रहे हैं कि मुझे खुशी है कि आपके साथ मुझे आज बैठने का मौका मिला, आपके साथ बात करने का मौका मिला। तो इस तरह हम आपके पास्टरों के जरिए इस जो है सकाफती बाउंड्री को, सकाफती हद को तोड़ रहे हैं। हालेलुया, Amen. बोलो तो सही, हालेलुया, जोरदार तालियां। Yes. Amen. आमीन। Jesus said that he needed to go through Samaria. यीशु मसीह कहता है कि हमें जरूरत है कि हम सामरिया के मुल्क में भी जाएं, यानी अपने कल्चर से निकलकर दूसरे के कल्चर में भी जाएं। In the previous chapter of John, Jesus had a meeting with Nicodemus, a ruler of the Jews. इससे पहले बाब में यीशु मसीह यहूदियों के सरदार काहिन को मिलते हैं जिसका नाम निकोदेमुस है। But he leaves that and explains to his disciples that he has to go through Samaria. यहां पर यीशु मसीह जाहिर करते हैं कि हमारे शागिर्द, निकोदेमुस यीशु मसीह को कहते हैं कि तुम्हारे शागिर्द जो हैं वो सामरिया को जाते हैं। The common route for the Jewish people of that time was to walk around Samaria to avoid them. जो यहूदी लोग हैं वो सामरियों से किसी तरह का कोई तल्लुक नहीं रखना चाहते और वो उनसे जो है वो कराहियत करते हैं, सामरियों से नफरत करते हैं, हेट करते हैं। फ्रॉम समरिया, समरथन, जो सामरिया के लोग हैं उनसे नफरत करते हैं। But we are seeing the compassion and the culture breaking love of the Lord Jesus. हमारा खुदावंद यीशु मसीह एक अपने अंदर जज्बा रखता है कि मैंने इन जो सकाफती हदों को भी तोड़ना है। हालेलुया। The purpose was to reach somebody of a different culture of his own, because that person. यहाँ पर ये हवाला पढ़ने का मकसद है कि यीशु मसीह सकाफती हदों को भी तोड़ने की कुदरत रखता है। हालेलुया। अब ये कितनी मिसालें हो गई? ये दूसरी मिसाल है। पहली मिसाल थी यीशु मसीह कुदरत की हदों को भी तोड़ता है। यीशु जीसस क्राइस्ट ब्रेक्स द बाउंड्रीज ऑफ नेचर।
And second one is Jesus Christ breaks cultural boundaries. Hallelujah. यीशु मसीह दूसरी एग्जाम्पल में, दूसरी मिसाल में सकाफती हदों को भी तोड़ता है. Yes, brother. Yes. And the final one tonight, Jesus breaks spiritual boundaries. हालेलुया. ब्रदर कह रहे हैं कि यीशु मसीह रूहानी हदों को भी तोड़ने की कुदरत रखता है. हालेलुया. जोरदार तालियां. Yes, amen. Yes. This boundary is one that we are all a part of. ये जो बाउंड्री है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल बाउंड्री है. ये कुवत वाली बाउंड्री है जो यानी ये बहुत सख्त है, जो यीशु मसीह तोड़ने की कुदरत रखता है. We understand through the story of Adam and Eve how they disobeyed God by eating the fruit that was forbidden. हम देखते हैं कि एक शख्स यीशु मसीह की नाफरमानी करते हैं. And with that, sin entered the world and caused a great void between man and God. एक शख्स या एक शख्सियत है जिसने इंसान और खुदा के दरमियान एक हद मुकर्रर कर दी, एक बाउंड्री लगा दी, एक दीवार खड़ी कर दी मेरे और खुदा के दरमियान. Yes, and scripture tells us that in Romans 3:23 that all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3 and verse 23. Chapter 3. Yes. Verse 23. Yes. यीशु मसीह ने जो हमारी रूहानी दीवार थी, रूहानी बाउंड्री थी, वो भी तोड़ दी. हम देखते हैं रोमियो 3 पौलुस रसूल का खत है, the letter of Paul to Church of Romans, chapter 3, verses 23. Written as, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है. So with this, we understand that we are separated from God by sin, that is our nature. फितरती तौर पर जब हमने गुनाह किया तो हम खुदा की उस दुनिया से, खुदा की मोहब्बत से महरूम हो गए, एक जुदाई पड़ गई, हम जुदा हो गए. No matter how hard man tries on his own, there's only so close he can get to God. हम जब गुनाह के तो हम उस जो खुदा की मोहब्बत थी उससे महरूम हो गए. Praise God. Because there is a boundary that will not allow him to go any farther. क्योंकि वहां पर बाउंड्री थी, वहां पर एक हद थी जिसने हमें खुदा से जुदा कर दिया. In some other religions and other practices, they have tried to earn favor or try to communicate with God. बहुत सारे मज़ाहिब खुदा से दूर हैं. But it is all done through men's effort, through various offerings or sacrifice. Repeat, please, brother. Hand-free problem. Okay. We can see in other religions or practices, they try to earn favor and to communicate with God. हम देखते हैं कि बहुत सारे मज़ाहिब में खुदा के साथ दोबारा राबते के लिए ऐसी कोई चीज नहीं मिलती जो खुदा से राबता करवाए.
but it is all done through men's efforts, through offerings or sacrifices. बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि कुर्बानियां देने से हम खुदा के साथ कोऑर्डिनेट, खुदा के साथ राब्ता कर सकते हैं। But one thing of all that is true, and that is there needed to be a sacrifice made on our behalf. ये काफी हद तक जायज भी है, रवा भी है कि खुदा के साथ राब्ता करने के लिए कुर्बानी देना जरूर था, कुर्बानी देना पड़ी। Scripture tells us that in Hebrews 9 and verse 22, that without the shedding of blood, there is no खुदा का remission. कलाम हमें अब्रानियों के खत में बताता है, हेब्रियों, Without the shedding of blood, there is no remission of sin. चैप्टर प्लीज, Chapter 9, बाब 9 वर्स 22. 22वीं आयत। Hebrews यहाँ पर 9:22. यहाँ पर अब्रानियों के खत में 9वें बाब चैप्टर 9 आयत 22वीं यानी 22 हमें बताती है, और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। आमीन जी, प्रेज गॉड। Amen. Yes, there had to have been a sacrifice made to break through the boundary that sin had created. जो गुनाह को पैदा करता है उसकी हदों को तोड़ने के लिए कुर्बानी जरूरी है। It was Jesus that provided that sacrifice worthy enough. यीशु मसीह मेरी और आपके गुनाह के कफारा के लिए मुहैया किया गया कि वो अपना खून बहाए और उस दीवार को, जो जुदाई की दीवार थी, उसको खत्म करे। It was Jesus that left the comforts of heaven with the purpose to face the cross to make that sacrifice. यीशु मसीह आसमान से भेजा गया कि हमारे गुनाहों का कफारा दे, सलीब पर हमारे गुनाहों की खातिर जान दे और हमारे गुनाहों को अपने खून से ढांप ले, अपने खून से धो डाले। Yes, Philippians chapter 2 verses 6 through 8. फिलिपियों chapter 2, Yes. yes, Verses 6, 7 and 8. 6 to 8 हम देखते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा बाब 6 से 8वीं आयत तक बगौर मुताला करेंगे। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। आमीन। Amen. Jesus broke that spiritual boundary by presenting the sacrifice to the Father. यीशु मसीह कुर्बानी के जरिए रूहानी जो हदें हैं उसको तोड़ता है। He was not willing to leave us destitute, bound with a boundary of sin. खुदा नहीं चाहता, यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम गुनाह की हदों में कैद रहें। हालेलुया, जोरदार तालियां। Yes, amen. He was not willing to watch us suffer because we could not reach our Heavenly Father.
वो ये नहीं चाहता, यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम अपने खुदा बाप के साथ मुलाकात ना करें। And just as he said in John chapter 4 that he had to go through Samaria, यीशु मसीह यूहन्ना की अंजील चौथे बाब में जब सामरिया को गए, we see now that he had to leave heaven with a particular goal in mind. यीशु मसीह वहां पर किसी जहनी फशार में ना रहे, And that was to reach somebody that was lost, somebody that was suffering because of a boundary. कुछ लोग बहुत सारी हदों में मुब्तला रहते हैं, फंसे रहते हैं, उनमें जकड़े रहते हैं कि मैं क्या करूं। He provided provision for each of us today to break through those spiritual boundaries to join us once again with God. हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आज रूहानी हदों को तोड़कर आपको खुदा के साथ मिलाने के लिए उतरा हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, जोरदार तालियां। Hallelujah. Yes. You may say, Pastor, you don't understand my situation. Jesus won't like me in this way that I am. हम यीशु मसीह को जब अपनी कंडीशन, अपनी सिचुएशन, अपने हालात बताते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह हमारी सिचुएशन, हमारी हदों को, हमारी बाउंड्रियों को तोड़ने की कुदरत रखता है। The woman in Samaria that Jesus went to was after having 5 different husbands. जब यीशु मसीह सामरिया की उस औरत से मिलते हैं, तो उससे जिसके पास बहुत सारे शौहर हैं, यीशु मसीह उस पर जाहिर करते हैं। And she would go and gather water at a time when nobody else was there at the well because of her reputation. कोई नहीं जानता था कि जो कुएं पे आया है वो कौन है। हालेलुया, वहां पर यीशु आया हुआ है जो सारी हदों को तोड़ने की कुदरत रखता है। Hallelujah. But Jesus met her where she was when she needed him the most. यीशु मसीह वहां पर क्यों आ गया, वहां पर उस कुएं पर क्यों आ गया? क्योंकि उस औरत को उस वक्त यीशु मसीह की जरूरत थी। हालेलुया, Hallelujah. Romans chapter 5 verses 6 through 9. Romeo chapter 5 verses 6 through 9. 6 to 9। हम रोमियो के खत में 5वें बाब की 6 से 9वीं आयत तक बगौर सुनेंगे, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़बे अल्लाही से जरूर ही बचेंगे। आमीन, Amen. Jesus is not restricted by any boundaries. यीशु मसीह किसी भी हद को जब वो क्रॉस करने के लिए ममनू नहीं है, वो मना नहीं करता। The boundaries that different cultures have are no concern to Jesus. हम देखते हैं कि जो सकाफती हदें हैं ये भी यीशु मसीह से ताल्लुक रखती हैं।
because Jesus is just, he treats every single one of us the same. क्योंकि यीशु मसीह अकेला ही है जो सारी सकाफतों को जानता है और सारी सकाफतों को की हदों को तोड़ने की कुदरत रखता है। हालेलुया। With the same love and the same compassion and the same forgiveness, regardless of culture. वो एक जैसी ही मोहब्बत सारी सकाफतों के साथ रखता है, वो एक जैसा ही जज्बा सारी दुनिया की सकाफतों के साथ रखता है, वो एक जैसी ही मोहब्बत आप सब से रखता है। Jesus is not concerned with the boundaries of nature. यीशु मसीह फितरत यानी कुदरत की जो हदें हैं उससे भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है। He is able to change nature. He is able to change water to wine. वो कुदरत रखता है, वो पावर रखता है कि वो पानी को मैं में तब्दील कर दे। ये फितरत की हदें भी, ये कुदरत की हदें भी उसने तोड़ दी हैं। हालेलुया। He is also able to change our nature from a sin nature into a new creation in Christ Jesus. Amen. यीशु मसीह हमें एक नई जो है वो कुव्वत, एक नई तख्लीक करने की भी कुदरत रखता है कि हम गुनाहों की सकाफत से, गुनाहों की हदों से दूसरी तरफ जाकर जो है वो माफी की हदों तक जाएं। हालेलुया। Hallelujah. Now I know that we all have to deal with different kinds of boundaries. बेशक हम मुख्तलिफ तरह की हदों को, बहुत तरह की, बहुत किस्मों की हदों को अपनी जिंदगियों में रखते हैं। And sometimes they seem impossible to avoid, and they are controlling your life. हम बाज़ औक़ात अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए जो है वो नामुमकिन चीजों को रखते हैं कि मैं कैसे अपनी जिंदगी को तब्दील या चेंज कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। Well, friends, we have the one that is a boundary breaker, and that is Jesus Christ. हमारा एक दोस्त है जो इस जो नामुमकिनात की हदें हैं उसको तोड़ने की कुदरत रखता है। वो कौन है? हमारा दोस्त यीशु मसीह। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। Yes, amen. आमीन, आमीन। Having the opportunity for me to share with you in this way is proof of how Jesus can break boundaries. मैं खुदावंद का मशकूर हूँ, खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज मुझे मौका फराहम किया कि मैं आपके साथ इस जो हदों को, यीशु मसीह की हदों को तोड़ने का मौजू है उसको बयान कर सकूं। We're seeing how this entire world was suppressed by the COVID pandemic. हम देखते हैं कि जो एक आलमी वबा है, कोरोना वायरस यानी कोविड-19, पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। And it would seem that church would not be able to reach people the way that we always did. हम देखते हैं कि जो लोग शुरू से मुर्दा थे, इस वबा में वो चर्चों में आना शुरू हो गए हैं, यानी जिंदा हो गए हैं। हालेलुया। We're seeing now that this boundary has been broken and the church is reaching farther than ever before. आज तक चर्चों में, गिरजाघरों में इतनी पब्लिक, इतनी गैदरिंग नहीं हुई। जब ये कोरोना वायरस आया, कोविड-19 आया, तो बहुत सारे जो ईमान में मुर्दा थे उन्होंने चर्चों में आना शुरू कर दिया और वो अपनी मुर्दा जिंदगी से एक जानदार और जो है वो बाकुवत जिंदगी में दाखिल हो गए। यानी यीशु मसीह कुदरत रखता है कि वो जिंदों को जो है वो मुर्दों को जिंदा करे। And we give God all the praise and the glory for this boundary broken. हम ये सारी इज्जत जलाल खुदा के बेटे यीशु मसीह को देते हैं जिसने इस बाउंड्री को जो
हमारे और खुदा के दरमियान ये दीवार थी, उसको खत्म किया और लोग चर्चिज में आना शुरू हो गए। And today, my friends, Jesus is extending the opportunity to you to experience him as a boundary breaker. मेरे अजीजों, आज खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी की हद्दों को भी तोड़ना चाहता है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हद्दों को तोड़ने की कुदरत रखता है। The offer is there for anyone who does not serve Jesus in a personal way. कोई भी शख्स शख्सी तौर पर यीशु मसीह को अपना जो है वो निजात दहिंदा तस्लीम कर सकता है कि वो बाउंड्रियों को, कि वो हद्दों को तोड़ता है। Is to ask him into your heart to forgive you of the sin nature that has created that boundary. यीशु मसीह जो एक तख्लीकार है, वो आपको नए सिरे से तख्लीक कर देगा जब आप अपनी हद्दों को, अपनी जिंदगी में जो हदें मुकर्रर हैं उसको तोड़ देंगे। And to start a new life as a new creation in Christ Jesus. आए हम यीशु मसीह में उन तमाम हद्दों को तोड़ें और एक नई जिंदगी का आज से आगाज करें। Let's pray together. आए हम मिलकर दुआ करें। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और हम दुआ करेंगे इकट्ठे मिलकर। Lord God, I know that there are boundaries that keep me from you. ऐ खुदा बाप, तू जानता है कि मेरी जिंदगी में कौन सी हदें हैं। And that is the boundary of sin. जो गुनाह की हद हो सकती है। And I understand that Jesus, the divine Son of God, offered a sacrifice for me. मैं जानता हूं कि यीशु मसीह ने अपनी जान का कफारा देकर मेरे गुनाहों को, मेरी जिंदगी में से मेरी तमाम हद्दों को तोड़ दिया है। Lord, I want to accept that sacrifice of Jesus. हमारे यीशु मसीह के वसीला से खुदा ने हमारे तमाम गुनाहों को अपने बेटे की कुर्बानी से सैंच दिया है। Jesus, forgive me of my sin and come into my heart today and allow me to start a new खुदावंद life. यीशु, आज के दिन तू मेरे दिल में आ और मेरे तमाम गुनाहों को धो डाल। And allow me to start a new life in you, in Jesus' name. Amen. और मुझे एक नई जिंदगी देकर अपना प्यार यीशु मसीह के वसीला से दिखा। ये सारी दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं। सब बोले आमीन। Praise God. Hallelujah. God bless you. It's certainly a privilege. हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। It's certainly a privilege to share with you like this. बहुत जल्द मैं आपको इसी तरह का कोई मौजू आपके साथ डिस्कस करूंगा। I pray if there was anyone that decided to serve Jesus, to let your pastor know so he can let me know. आप अपने पास्टर को या मुझे बता सकते हैं कि आप किसी मकसद के लिए दुआ करवाना चाहते हैं। Amen. Well, God bless you tonight. खुदावंद आप सबको आज की शाम बरकत दे। आमीन। Amen. Saying bye. Goodbye. Bye-bye. God bless you. Bye. Thank you, brother, for taking your precious time. No problem. No problem. We will talk to you again soon, okay? Oh, okay. We'll talk. Amen. Soon. Amen. In the name of Jesus. God bless you. In Jesus' Okay. name. Okay, brother. God bless you. Bye. Bye.